Keep your eyes closed, आंखें बंद रखें. Feel the vibration of ओंकार on your mind and body. अपने शरीर और मस्तिष्क में ओंकार की कंपन को महसूस कीजिए. Your body is vibrating with the energy of ओंकार. Gathering profound energy and positivity from ओंकार. Just come back to yourself, rub your hands and place it on the eyes. So yesterday I told you how to do Omkar. Few of you had doubts कि Omkar exactly कैसे सही किया जाए. So like I told you, Omkar is made up of 3 syllables. 3 अक्षरों से बना है, अ, ओ और मकार. आप अ से धीरे से स्टार्ट करते हैं. अ का साउंड ज्यादा सुनाई भी नहीं देता है. हल्का सा अ से स्टार्ट करते हैं. And see, you will have to look, you have to check out my lip movement, किस तरह से होता है. So it is so you start with the A, your lips protrude, your mouth gets protruded into O, slowly getting into high pitch, and then again it becomes flat, coming down into Makar, feeling that vibration till the navel. Okay? So, next is Shuddhikaran, our nasal passage cleansing, that is Shwasan Mark Shuddhi. Okay? Close your right nostril. अभी मुद्रा बनाकर रखें. जैसे कल आपको मैंने बताया था, all the breathing exercises के लिए you will do अपान मुद्रा. Joining the tip of the thumb to the tip of the middle 2 fingers. The index finger, the middle finger and the ring finger. Okay, right hand से अपना right nostril बंद करें. 5 exhalations from your left nostril. 5 बार सांस छोड़ेंगे left से. Come back. Now with the left nostril बंद कीजिए, right से छोड़ेंगे. Come back. Do it with both the nostrils. Come back. I'll request everyone to kindly practice. खाली observers ना रहें, खुद practice करें, तभी आपको आदत लगेगी करने की. और करते समय आपको कुछ दिक्कत आती है तो आपको समझेगा. You can ask me the questions related to it. Next, अभ्यंतर प्राणायाम. कमर पे हाथ रखते हुए. Okay, we will breathe in. Hold for a few seconds. Breathe out. You will completely follow my instructions. कमर पे हाथ रख लीजिए. Breathe in. Keep your breath hold. Breath retention कीजिए. सांस रोक कर रखिए. And breathe out. सांस छोड़ने के बाद फिर से बिल्कुल सांस लेनी भी नहीं है, छोड़नी भी नहीं. Once again, breathe in. Hold. Breathe out. And hold. Breathe in. Hold. Breathe out. And hold. See, you will be able to hold it more efficiently जब भी आप complete inhalation करते हैं. आप समझो आधी सांस ले रहे हैं, पूरा complete lung inhalation नहीं हो रहा, chest inhalation नहीं हो रहा. See, if it is this way, तो आप ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे. अनलेस आपकी छाती में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं भरा हुआ, आप ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकेंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इनटू कंप्लीट इनहेलेशन. पूरी आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपैंड होनी चाहिए और इसी तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए. वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, बॉडीली मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए. अभी आप ये जब भी कर रहे हैं,
ये 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 सब आपको नहीं करना है. It has to be very easy, naturally आपके प्राण आपके बॉडी में मूव होने चाहिए. Okay, the same movement we'll do on our chest now. Place your hands over the chest. Breathe in, feel the expansion of your legs. Breathe out. Again, breathe in. Complete expansion. And breathe out. Again, breathe in. Breathe out. Relax. So the holding position, जब भी आपने सांस होल्ड करके रखी है, that is called कुंभक. योगा में उसे हम कुंभक कहते हैं. Now place both the hands over the spine. पीछे रीढ़ की हड्डी पे रखें. Arms straight up, touching your ears. Breathe in. एक बार सांस लेके सांस को होल्ड कीजिए. कुंभक लगाए रखिए. And breathe out. Remember, anyone who is not able to hold कुंभक ज्यादा देर नहीं लगा सकते हैं. They don't have to exceed their capacity. अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए. Okay. Next we get into dynamic breathing. एक हाथ छाती पे, दूसरा नाभि पे. एक ही सांस को 5 टुकड़ों में लेना है, सांस को होल्ड करना है एंड देन 5 टुकड़ों में छोड़ना है. Okay. Breathe in. Sorry. 5 times. One breath into 5. Keep holding at this point. Breathe out. Once again, in. So as your chest gets expanded, your abdominal region starts pushing inwards. Breathe out. और जैसे आप सांस छोड़ते जाते हैं, आपका abdominal region फूलता जाता है, lungs contract होती जाती है. One more time. Breathe in. Keep holding for a few seconds. Again, according to your comfort. Breathe out. Relax. वापस अपान मुद्रा में बैठ जाएंगे. आज मैं आपको न्यू टेक्निक्स जो है वो सिखा देती हूँ. उसके बाद we will follow the things that we did yesterday. So like I had told you yesterday, the 4 main pranayams for COVID related या अपने lungs related mainly जो pranayams है, those are Bhastrika, Kapalbhati, Anulom Vilom and Brahmari. So उसमें से आपको मैंने Bhastrika और Kapalbhati सिखा दिया. I've already taught you yesterday. We will definitely revise it. But today, before that, I will teach you Anulom Vilom and Brahmari. Okay? चलिए. तो first we start with Anulom Vilom. ना Anulom Vilom के लिए आप अपनी index finger को इस तरह से वायु मुद्रा में लगा देंगे. Okay? And you will use your your thumb and your ring finger for doing Anulom Vilom. अभी आप ध्यान से सुन लीजिए. All the new practitioners पूरे ध्यान से सुनेंगे. Always start Anulom Vilom, practicing Anulom Vilom from left side. Left nostril से आप सांस लेना start करेंगे. और when you end it with the left nostril. सांस left nostril से छोड़ते हुए end करेंगे. Okay? खाली आप देखेंगे पहले. तो you close your right nostril. आप left से भी left hand से भी वायु मुद्रा लगा कर रख सकते हैं. अभी दोनों हाथों से वायु मुद्रा है. Right nostril को बंद कीजिए. Okay? Left से सांस अंदर लीजिए. Breathing from left. Now close your left nostril with your ring finger and breathe out from right. Now breathe in from right and breathe out from left. Breathe in from left. Breathe out from right. Breathe in from right. Breathe out from left. Come on. So what exactly are you doing? You're making U.
ulta U, inverted U. So you go from left to right, right to left, again left to right, and right to left. Okay, so this way, or this is called alternate breathing or अनुलोम विलोम. So दोनों नाड़ियों को हम ये करते हैं, साफ करते हैं, क्लींजिंग करते हैं. Okay, so let's begin. साथ में कीजिए. I will instruct you. साथ साथ में करते जाइए. धीरे से करना है and with full expansion, full lung expansion. बिल्कुल ढाई में ना कीजिए, अच्छे से कीजिए, फील करते हुए कीजिए. Okay, close your right nostril with right thumb, spine straight, breathe in from left, close your left nostril and breathe out from right. Right से inhale कीजिए, left से exhale कीजिए, सांस छोड़िए. Left से inhale कीजिए, right से छोड़िए. Inhale from right, exhale from left. Inhale from left, exhale from right. Inhale from right and exhale from left. Slowly come up. अगर किसी को ये करते समय कुछ दिक्कत हुई है, अगर सर में जैसे कल आपको बताया गया था, सर में अगर सांस चढ़ती है आपका कुछ भी प्राणायाम करते समय, तो जस्ट टू रिलैक्स योरसेल्फ ये कीजिए. विथ योर थंब फ्रॉम द मिडल ऑफ द आईब्रोज जस्ट पुश इट अपवर्ड्स. यू फील वेरी रिलैक्स्ड. आप इसको बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेटे हुए भी कर सकते हैं. ओके, एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर फोरहेड जस्ट पुल इट आउट. तो अगर आपको कुछ भी there has been, the breath has reached your head region, your brain region, it will relax. Come back. Next, जो नया आपको सिखाऊंगी आज वो है ब्राह्मरी. Okay, ब्राह्मर क्या होता है? हनी बी. ओके, तो हनी बी की तरह हमें साउंड करना होता है. तो बिफोर गेटिंग इनटू फाइनल मुद्रा ऑफ अनुलोम ऑफ ब्राह्मरी, आप खाली एक साउंड कीजिए जैसा मैं करती हूँ, आपको बताती हूँ. ओके, अगेन अपान मुद्रा में बैठ जाएं. ओके, जस्ट एक ब्राह्मण का साउंड कैसे आता है, जैसे ये साउंड आपने करना है. Now while you do this, there will be some vibration that will feel in your you will feel in your body. Okay, and this vibration is mainly good for your this region from your throat till the brain. इस region के लिए it is very beneficial, बहुत फायदा देती है. Okay, now आप पहले सिर्फ इस sound की practice कीजिए मेरे साथ. अब अपान मुद्रा लगाकर बैठिए. Just breathe in and make that sound. अब ये साउंड को किस स्वर में करना है आपको? यू हैव टू डू इट इन ओंकार स्वर. ओंकार का स्वर क्या है हमारा? उसी तरह से and this sound has to be distorted. एकदम फ्लैट साउंड में नहीं, फ्लैट साउंड नहीं आना चाहिए. एकदम एक डिस्टॉर्टेड साउंड, एक मतलब वाइब्रेशन आना चाहिए साउंड. ठीक है, अभी आप क्या करेंगे? अभी आप सिर्फ अपने थंब से अपने ईयर्स बंद करेंगे और हाथ को सर के ऊपर रखिए और फिर ये साउंड करके देखिए. ठीक है, 3 बार इस साउंड को हाथ सर के ऊपर रखते हुए कीजिए. कान को अच्छे से बंद करना है, थंब से अच्छी तरह से बंद कीजिए. ओके, start making that sound 3 times. Again.
Breathe in again. Relax. So whoever has felt this, अगर आपने फील करके किया है तो आपने इधर वाइब्रेशन महसूस किया होगा, राइट? Many of you must have felt it. जब भी मैं आपको जैसा बोल रही हूँ, कुछ भी प्राणायाम आप कीजिए, जब तक उसको आप फील करके नहीं करते, you will not get the 100% benefit out of it. So when you feel this, इधर आपको राहत रखवाने का मकसद यही था कि you have to feel that vibration. Okay? Now this vibration helps to release a chemical in your body which helps to improve your immunity. Besides there are many more benefits of Brahmari. जैसे जिनीन नहीं आती है वो लोग कर सकते हैं. ड्राई आइज की तकलीफ जिनको है, यू नो आजकल बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू मीडिया, टू स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया लोगों का, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है. उसमें भी आंखों रिलेटेड कुछ भी है उसके लिए भी अच्छा. स्ट्रेस, टेंशन, माइग्रेन, इन सब के लिए दिस इज वेरी हेल्पफुल. ओके, नाउ द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग इट एज अ प्राणायाम, योगिक प्राणायाम. आप इसको कैसे करेंगे? आप अपने कानों को अगेन थंब से पूरी तरह से बंद करेंगे और अपनी बाकी की चारों उंगलियों को इस तरह से लगाएंगे. ओके, एंड फिर आप उसी तरह से ब्रह्मर के साउंड में, 3 ओंकार के साउंड में हमिंग साउंड करेंगे. ओके, अगेन डू इट विथ मी. नाउ दिस टाइम यू विल क्लोज योर आईज दिस वे. ओके, क्लोज योर थंब विथ क्लोज योर ईयर्स विथ योर थंब. क्लोज योर आईज. Breathe in. Rub your hands and come back. Place it on the eyes. Okay, so the two new pranayams that you learned today was Anulom Vilom and Brahmari. There are 3 more Laghu Kriyas जो लास्ट में टाइम बचता है तो मैं बताती हूँ. Now we will start practicing from Bastrika, फर्स्ट एंड सेकेंड. जो कल मैंने आपको Bastrika एंड कपालभाति बताई थी, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, सो जो आप whatever comfortable position you can sit, please sit in. आप सुखासन में बैठ सकते हैं प्राणायाम करते समय, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या वज्रासन में. While sitting in Vajrasan is one of the best positions to practice pranayam. वज्रासन में बैठते समय आप क्या करते हैं? You keep both your toes together. Keep both the toes together. इसको overlap नहीं करना होता है. Just allow your both the toes to be together. Gap between your heels. आप आराम से इस पे बैठ जाते हैं. ये position में नहीं बैठना. This is wrong. Okay, you have to sit this way comfortably. And then आगे से your thighs have to be together. You don't have to be sitting like this. Your thighs have to be together. इस पोजीशन में आप जो भी मुद्रा बनाना चाहें उस मुद्रा में आप बैठ के प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन जिनको नी प्रॉब्लम है, people who cannot sit down and practice, they can sit on the bed, on the chair, wherever you feel comfortable. And people with knee pain should avoid sitting in Vajrasan for a longer time. Okay, so let's begin with Bastrika. So like I told you yesterday, अपान मुद्रा बना लीजिए पहले. Okay, complete inhalation and complete exhalation. 2.5 सेकंड में पूरी सांस अंदर लेंगे और पूरी सांस छोड़ेंगे. पूरी सांस लेने का मतलब complete expansion of your lungs, complete contraction of your lungs is complete exhalation. चलिए साथ में करेंगे. Breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in,
out, in, out. Now I'll show you the medium pace also today. जो कर सकते हैं वो ही करेंगे. हाई बीपी पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, एपिलेप्सी जिनको फिट्स आते हैं, जिनको पैल्पिटेशन है, धड़कन तेज होने की तकलीफ है, और पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना या जो अभी अभी रिकवर हुए हैं, दे विल नॉट डू इन मीडियम और फास्ट पेस, उनको स्लो ही करना है. ओके, चलिए जस्ट सी हाउ मीडियम इज डन. मीडियम पेस में किस तरह से करना है. मुद्रा, अपान मुद्रा बनाकर बैठे हैं. रिलैक्स. सो आप एक ही लय में इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों करते हैं, और ध्यान रखिए ये नहीं होना चाहिए. This should not be done purposely. Okay, this has to be natural. It has to be done naturally. Your body has to be completely in relaxed mode. Okay, कोई भी body part को आपको stiff करके नहीं करना, इस तरह से नहीं करना है. आपके neck muscles, shoulder muscles have to be completely relaxed. Okay, once again medium pace, around 10 to 15 counts. Start. Relax. इसको डीप ब्रेथ कैसे करेंगे, इसी को भस्त्रिका में डीप ब्रीदिंग. ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, 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 वन मोर, इन. सो whoever feels giddiness, ये वाला करते समय, डीप ब्रेथ करते समय आपको अगर चक्कर आते हैं तो प्लीज डोंट ट्राई इट. आप उनको उसको सही तरीके से करना सीख ले पहले. आप जब भी काफी दिन तक मीडियम पेस में करेंगे, स्लोली फास्ट पेस में जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू डू दिस आल्सो. एंड द राइट टेक्निक इज यू डोंट हैव टू टेक योर ब्रेथ अप टिल द ब्रेन. सांस को ऊपर तक नहीं चढ़ाना है, वो आपको यहाँ तक कंट्रोल करना आना चाहिए. ओके, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है. Now, let's do it with hand movement. हम मुट्ठी को बंद खोल करते हुए सांस ऊपर लेते समय ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम वापस आएंगे. ओके, चलिए साथ में करेंगे 20 काउंट्स. रिलैक्स. ओके, whenever you feel tired while doing pranayam, आपको एक पोजीशन में अगर पैर दुखते हैं, you can keep changing it. आप पैर spread out करके भी बैठ सकते हैं. If you feel your back is aching, people with backache, they can sit against the wall also. There is no problem. While you're doing pranayam, आपका पूरा ध्यान आपके प्राणों पे रहना चाहिए, ब्रेथ पे रहना चाहिए. जस्ट you have to ignore all other pains. उसके लिए बॉडी को बाकी सारा कंफर्ट आप दे दीजिए, so that you can concentrate on your breathing pattern. नेक्स्ट वीडियो कपालभाति. ओके, कपालभाति में जैसे आपको मैंने बताया था, भस्त्रिका में हम मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं. अपने वायु कोश को, द एल्वियोलाइज इन आवर लंग्स गेट फ्रेड अप, पूरा भर लेते हैं ऑक्सीजन इसमें. अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड, द टॉक्सिक एलिमेंट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, इज थ्रोन आउट थ्रू एक्सहेलेशन इन कपालभाति. कपालभाति में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो नहीं जरूरत है बॉडी में, उसको थ्रू कपालभाति हम निकाल देते हैं. किस तरह से? एक बार आप सांस लेंगे, उसके बाद आप सिर्फ सांस छोड़ेंगे आपके कंफर्ट के हिसाब से. सो वी विल प्रैक्टिस द सेट ऑफ ये 5 ब्रीथ एक्सहेलेशंस का प्रैक्टिस करेंगे 5 टाइम्स. ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड अपने पेट पर रख लें. ब्रीथ इन, एक्सहेल, खाली सांस छोड़िए. 1 2 3 4 5. Breathe in again. 1 2 3 4 5. Breathe in again. 1 2 3 4 5.
Breathe in again. 1, 2, 3, 4, 5. One last time. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. If even 5 is difficult for you, आप 5 भी अगर नहीं कर सकते, you feel you're getting choked, automatically how your body will start responding. आपकी अपर बॉडी जो टाइटन अप हो जाएगी, आपको चक्कर आने लगेगा या कुछ. ओके, इतना सिवियर नहीं होता है, बट आई एम टेलिंग यू द मैक्सिमम थिंग दैट कैन हैपन. आप इमीडिएटली छोड़ देंगे कपालभाति. अच्छी नॉर्मल 3-4 बार 5-6 बार ब्रीदिंग कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, एंड देन स्टार्ट अगेन. ओके, बट जब भी आपको एकदम ऐसे ये पोजीशन आ गई है, आप नहीं कर पा रहे हो, तभी भी ऐसे स्लो फास्ट ऐसे करना इज रॉन्ग. द ब्रीदिंग, द एक्सहेलेशंस हैव टू बी रिदमिक एंड हार्मोनियस. ओके, किस तरह से? सी दिस वे. सो एक बार आप फास्ट करें, एक बार स्लो करें, नो, दैट इज नॉट हैपनिंग. वो नहीं करना है आपको, एक ही लाइन में आपको करना है. इवन इफ इट इज 2 काउंट्स, 5 काउंट्स, 10 काउंट्स, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, बट बहुत फास्ट नहीं जाना है, एक लाइन में ही करते रहिए. फॉर द बिगनर्स, एक एक्सहेलेशन 1 सेकेंड. सो 1 मिनट में आपने कितने कर लिए? 60 कर लिए. ओके, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट कंटिन्यू इट विद फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स में अगर आप बीच बीच में सांस छोड़ के करते हैं, still that is fine. Normal breathe in breathe out करके फिर से स्टार्ट करते हैं, still it is fine. You can practice that. Okay, चलिए अभी 10 काउंट्स के साथ करेंगे. अपान मुद्रा लगा लें. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. I'm reminding once again, ladies during periods, सबको वाइल हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, अस्थमा, एपिलेप्सी या कोविड से रिकवर अभी अभी हुए हैं, या कोविड में हैं अभी, आप कोरोना आपको है अभी, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, प्लीज डू इट इन स्लो पेस. ओके, एंड ड्यूरिंग पीरियड्स लेडीज कैन completely avoid it, or if at all you're doing it, it has to be slow and minimum strokes. कम stroke slow में करना है. Okay, 2 more sets of 10 counts. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 2-3 deep breath लेंगे. Again, one more set. Breathe in. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. Okay. Now, continuous एक लाइन में 15 बार करेंगे. I will not count. Try to do it yourself. If you face some problem, सेशन के लास्ट में आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, मैं अभी काउंट नहीं करूंगी. आप खुद महसूस कीजिए the way you are able to do it. आपको कुछ तकलीफ आ रही है, whether you able to follow the rhythm or not, and count रखिए. Always while practicing कपालभाति, keep a count कि आप एक सांस में कितने exhalations कर रहे हैं, so that with your practice you get to know, you monitor yourself कि हाँ, you are improving. Usually if you continuously practice it, if you start with 2 or 3 or 4, within a month, if you're doing it with determination every day, आराम से you can reach up to 50-60 counts. Ekdam aaram se. Okay, now everyone will do it with me, but I will not count. Okay, breathe in. Relax. Okay, there must be few of you जो 5 के बाद या 10 के बाद थक गए होंगे, but that's fine. आपने फिर से breathe in, breathe out, breathe in करके फिर से start किया होगा. That is absolutely fine. Okay, don't worry about the number of counts. Doing it correctly is more important. Okay, now एक short round of अनुलोम विलोम and ब्राह्मणी भी मैं आपको बताती हूँ, so that you get to know कि exactly क्या pattern आपको follow करना पड़ता है. Okay, just 5 rounds of अनुलोम विलोम. लेफ्ट हैंड से वायु मुद्रा लगा ले.
इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस में रखें। राइट हैंड से भी वायु मुद्रा पहले लगा लें। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करें। ब्रीथ इन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट बंद करें, राइट से छोड़ दें। राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से छोड़ दें। लेफ्ट से इनहेल, exhale from right, inhale from right, exhale from left. 2 more rounds. Inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left. Come. जैसे कि बताया गया था, you have to start inhaling from left and end करते समय you have to exhale from left. Left से ही सांस छोड़ के रुकना है. Okay? भ्रामरी, ठीक है? इसको अपने कानों को अपने थंब से अच्छे से बंद कर लीजिए. खाली रखना नहीं है, अच्छे से प्रेस करना है. Place your fingers over your eyes. Breathe in and 3 times ओमकार के स्वर में honey bee sound. Inhale. Inhale. Come back. Okay. We'll do ओमकार. Again, 3 times ओमकार करेंगे. ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं. Breathe in. Gently close your eyes. Rub your hands and place it on the eyes. Yes. Okay. कुछ डाउट्स है तो पूछिए प्लीज. कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए. मैम. हाँ जी बोलिए. Can you show me Vayu Mudra one time? Yeah. Vayu Mudra is this way. Index finger को you touch to the base of the thumb and close your thumb from mouth. Okay. This way. Vayu Mudra is also helpful for reducing gas element, Vayu element, Vata element from your body. जैसे कि आप सबको पता है शरीर 5 भूत से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है. तो ये है जो ये हमारे शरीर से वात कम करने में भी हेल्प करता है. हाँ भारती. हाँ जी बोलिए. हाँ ये भ्रामरी करते हुए ना थोड़ा सा वाइब्रेशन जैसे मतलब जैसा होता है तो गर्दन से आवाज मेरी निकल रही है, जैसे खांसी जैसा थोड़ा होने लगता है बीच में. तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? Because your throat also gets activated. Throat को भी वाइब्रेशन मिलती है. That is the reason it is also good for thyroid gland. And like I told you, ये पूरे सेक्शन के लिए भ्रामरी is very good. So if you feel the vibration there, अगर आपको थोड़ा भी कफ वगैरह है शरीर में, तो वो उसके वजह से थोड़े आपको खांसी जैसा लगेगा, but then that is not a problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Because when you're doing that, your thyroid gland,
which is in front of your windpipe, इधर यहाँ पर होता है, एडम्स एप्पल के नीचे होता है थायराइड ग्लैंड, वो भी एक्टिवेट होता है, ट्रिगर होता है करते समय, वाइब्रेशन उधर भी पहुंचती है, इसके लिए आपको खांसी जैसा किसी किसी को लगता है. That is nothing to worry. तो जब भी आपको खांसी वगैरह की तकलीफ नहीं है तभी वो आपको नहीं होगा उस तरह से, otherwise it's fine. Hello, one more question. Yeah. Bharti, Yes. during Brahmi, we should close the mouth, or mouth should be, sound should come out from the mouth. The lips have to be closed. आपके It lips should be not like Om. Om it is open. ओम के जैसे नहीं, आप ओमकार के स्वर में करते हैं, but your mouth remains It's closed. closed. ओमकार का स्वर you have to follow that rhythm, but mouth remains closed. Is anyone else? भारती, Yes. मैं ये बोल रही हूँ, जब भ्रामरी करता है ना, हाँ. तो जैसे अपन, तूने तो बताया ना, थ्रोट का तो कफ भी आता है क्या उसमें? मैं आपको वही बता रही हूँ, कफ या खांसी तभी आएगा आपको, वो आपको मुंह में आता हुआ तभी महसूस होगा जब भी आपको शरीर में थोड़ा सा कफ वगैरह है. अच्छा, अदरवाइज इतना आने का चांस नहीं है. ओके In general it won't. ओके, बस मुझे अभी लगा ना, इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा. नहीं कोई बात नहीं, जो भी डाउट से पूछिए, जो मुझे पता है आई विल क्लैरिफाई, जो नहीं पता है मे बी यू कैन आस्क मी, मैं आपको नेक्स्ट वीक में क्लैरिफाई करूंगी, बट आई विल श्योरली टेल. जो भी डाउट्स आप पूछ. भारती मैम, हाँ जी बोलिए. गुड इवनिंग. ये मुझे प्राण मुद्रा एक बार दिखाइए ना, आप ऐसे कर रहे हो ना? नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं अपान मुद्रा कर रहे हैं. अपान मुद्रा. दिस इज अपान मुद्रा. अपान मुद्रा, अच्छा अच्छा. This is good for respiratory disorders. Many other benefits हैं इसके, but because I am focusing just on prana, just on breath, मैं आपको यही benefit बता रही हूँ. Otherwise, अच्छा. this has got many other benefits. आप जो प्राण मुद्रा बोल रहे हैं, लास्ट 2 फिंगर्स को जो हम लोग लास्ट, ओके ओके ओके, ऐसा. और ये अपान मुद्रा. दिस इज अपान मुद्रा, मिडिल टू. ओके. और ध्यान रखिए, आप जब भी मुद्रा लगाते हैं, किसी भी तरह की मुद्रा लगाएं, आप उसको जब भी वज्रासन में लगाकर बैठते हैं, यू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, यू कीप इट Straight. दिस वे, इट बेनिफिट्स यू मोर, बिकॉज आप जब भी मुद्रा लगाते हैं, सी आपका हाथ जो है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए. मोस्ट ऑफ द मुद्रास में 99% ऑफ द मुद्रास में आपके हाथ ऊपर की तरफ ही रहने चाहिए, बिकॉज द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हैंड. तो इसके लिए आपको हाथ ऐसे रख के इस तरह से बैठ के आप करेंगे, जो एनवायरमेंटल एनर्जी आपके हाथ एंड थैंक यू. अपने स्पाइन से जाती है, स्पाइन से इट ट्रैवल्स थ्रू द स्पाइन, द एनर्जी ट्रैवल्स थ्रू द स्पाइन. इम्पोर्टेंट कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठे. इसीलिए मैंने बोला, अगर किसी को कमर, kindly mute yourself, unmute it. हेलो हेलो. थैंक यू मैम. हाँ, अपान मुद्रा क्यों लोग करते हैं प्राणायाम के बाद? 1 minute, कुछ कंप्लीट दैट 1 minute. तो वो मैं बता रही थी कि इसलिए किसी को कमर दर्द है तो आप बॉल के साथ बैठिए, सो दैट आपको कमर की तकलीफ नहीं है करते समय. अगर आप ऐसे बैठ के करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट. तो अपान मुद्रा क्या करें? हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था. हेलो, और जिसने क्वेश्चन पूछ लिया, प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले वापस. जिसकी बात हो गई वो अपने yeah, someone was asking something. कोई कुछ पूछ रहा था. हाय मैडम. या हेलो. हाँ, अपान मुद्रा क्यों करते हैं? अपान मुद्रा, लाइक आई टोल्ड यू, इट इज गुड फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. कुछ भी आपकी ब्रीदिंग रिलेटेड कुछ भी ट्रबल है, उसके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है. इसके साथ ही साथ इसके बाकी बहुत दूसरे बेनिफिट्स भी हैं, लार्जर बेनिफिट्स. But I don't want to discuss that now because we are dealing just with pranayam session.
तो मैं आपको वो सारे बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बट Okay. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मुद्रास फॉर prana for breathe is this mudra. Okay. So आप ये लगाएं, समझो you're short of breathing, आपको palpitation high है या breathlessness है कुछ, आप थोड़ी देर ये लगाकर बैठे तो this will definitely help you. जिनको तकलीफ है they can continuously sit for longer time. काफी देर तक आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको तकलीफ ज्यादा है तो ये immediately लगाने से it's not going to help you. It will also take time. एलिमेंट वो बॉडी में उस एलिमेंट को बैलेंस होने में भी टाइम जाएगा, सो यू हैव टू सिट फॉर लॉन्गर टाइम. Okay. एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ डाउट है? आपको कुछ भी डाउट्स हैं, अगर अभी नहीं याद आते हैं, मे बी सेशन के बाद याद आते हैं तो लिख कर रखें. यू कैन आस्क मी इन द रेस्ट ऑफ द सेशंस नेक्स्ट वीक में जो सेशंस होंगे. सैटरडे एंड संडे देयर विल बी सेशंस विल बी नॉट देयर. नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे से होंगे सेम टाइम पे. Try to get in more people, और जितने लोग इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं लेने दीजिए. एंड नेक्स्ट वीक से, अभी क्योंकि मैंने सब कुछ सिखा दिया है, सिर्फ 3 छोटी क्रियाएं हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में बता दूंगी. एक लय में रोज करेंगे हम, तो आपको वो पैटर्न अच्छे से समझ आ जाएगा, सो दैट आफ्टर द सेशंस आल्सो आप घर में उसको रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैडम मुझे एक पूछना है. बोलिए. कैन यू प्लीज शो ओमकार? ओमकार, हाँ. what doubt do you have regarding ओमकार? Like how to keep the fingers? It is in the Gyan Mudra, in the index finger to the tip of the index finger to the tip of the thumb. Okay. इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं. मेडिटेशन में बैठने के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये मुद्रा को यूज किया जाता है. इसके लिए ओमकार के समय हम इसको लगाते हैं, ताकि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी फाइंड अवर सेंटर. अपने बॉडी को बाकी सब से कट डाउन करके वी स्टार्ट बाय ओमकार, so that we find our center and we start with this, you know. And इसीलिए कोई भी योगिक सेशन खत्म होने के पहले भी ओमकार करते हैं, so that बाकी सब वापस स्टार्ट करने के पहले you cut down from your practice. और जो अभी कोविड रिलेटेड है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम होते हैं, they can also do it, those who are suffering from COVID. ओमकार, हाँ. या बट उनका जो इनहेलेशन कैपेसिटी है, उनके अगर ब्रीदिंग की जो ट्रबल है उसके हिसाब से उनको करना है. Don't have to take very long and deep breath. उनको अपने कंफर्ट. कोई कोविड पेशेंट्स को कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो भी नहीं रही है, so it depends upon patient to patient. अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, बट ओमकार कैन बी डेफिनेटली डन. तो मिनिमम कितने काउंट्स करना चाहिए? सॉरी, मिनिमम कितने काउंट्स करने चाहिए? ओमकार क्या, यू कैन मिनिमम ऑफ 3 to maximum of any number. Okay. There is 11 ओमकार का मेडिटेशन होता है, 21 का होता है, 108 के होते हैं. It depends upon, you know, आप कितना ध्यान में बैठ सकते हैं. It's like आप करते रह रहे हैं और आपका ध्यान कहीं हो रहा है, तो that is of no use. So how long you're able to sustain your, you know, your presence, being in meditation, that will help you. And also जिसको जैसे सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए कौन सी मतलब मुद्रा सही रहेगी? Okay, so the thing is, because we are dealing just with pranayama session, I will request you not to you know, touch other topics, because ये बहुत vast topic है. But क्योंकि आपने मुझे पूछा है, मैं आपको बताती हूँ, but then kindly don't do it, because you know बाकी ऐसे पूछती जाएंगे हम लोग तो ये खत्म ही नहीं होगा कहीं पर भी. But because आपने पूछा है, I will give you this tip. Any kind of joint pain, किसी भी तरह का joint pain है, तो आप, ये है वायु मुद्रा और ये है अपान मुद्रा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे. इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा. एनी काइंड ऑफ जॉइंट पेन एनीवेयर इन द बॉडी, ये आपको अपान वायु मुद्रा लगानी होती है. तो आप इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पे लगाएंगे, एंड देन यू विल टच योर टिप ऑफ द नेक्स्ट 2 fingers टू द टिप ऑफ द थंब. इसको अपान वायु मुद्रा बोलते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ जॉइंट पेन्स, इवन फॉर आर्थराइटिस. मैम, यस भारती मैम, हाँ जी. भ्रामरी हम रात को कर सकते हैं? भ्रामरी रात को कर सकते हैं सोते समय? दिन में कीजिए, रात में कीजिए. जिनको नींद नहीं आने की तकलीफ है वो लोग रात में 5-6 बार कंटिन्यूस करेंगे.
आपको पता ही नहीं चलेगा, आप ऑटोमेटिकली यू विल फॉल asleep, खुद ही आप नींद लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एज आई टोल्ड यू, नींद के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी, टेंशन, ड्राई आईज, थायराइड ग्लैंड, माइग्रेन, हेडेक, इन सब के लिए, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस रीजन, ब्राह्मरी इज हेल्पफुल। एंड ओनली बिकॉज एक ऐसा केमिकल वो बॉडी में रिलीज करता है which helps you to increase your immunity power, इसके लिए कोविड टाइम्स में this is good. Madam, can you please show Brahmari once again? Can you please show Brahmari? Sure. So Brahmari में you close your ears with your thumb and place all other fingers on your eyes. Okay? इतने जो आपको ऐसे बंद करना है अपने ears कि आपको आपकी गुंजन, the vibration you should feel. आप हल्का सा बंद करेंगे तो you won't be able to feel the vibration here. So close it in a way, इतना ज्यादा प्रेशर भी ना दें कि आपके कान दुखने लग जाएं, but then a medium pressure and closing your eyes this way. Again, आंखों को दबाना नहीं है, okay? And ओंकार के स्वर में ध्यान रखिए, आंखों पे जोर से प्रेशर ना दीजिए करते समय। ब्राह्मरी भी 2-3 तरीके से किया जाता है, 2-3 तरह की मुद्रा में। मैंने आपको इजीएस्ट मुद्रा बताई है। Any other doubts? लेकिन मैडम जब ऐसे समय हमको ब्रीथ इन ऐसा कुछ करना है क्या? जब हम ये ब्राह्मरी जब कर रहे हैं, आप पहले सांस लेते हैं, सांस लेके जब भी आप वो ब्राह्मर का साउंड छोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली यू आर रिलीजिंग योर ब्रेथ, एक्सहेलेशन ऑटोमेटिकली। So second time, तब तक हम सांस second time when you do, you inhale again and then you start again. So do we need to hold the मतलब इनहेलेशन में ब्राह्मरी करना है, इनहेलेशन में फुल ब्राह्मरी करना है, इनहेलेशन करके फिर ब्राह्मरी करना कान में। अच्छा, मतलब एक्सेल नहीं करना, जब खत्म होता है तो ही एक्सेल करना है। एक्सेल आपको जरूरत है, एक्सेलेशन ऑटोमेटिकली थ्रू साउंड हो रहा है। When you're releasing that sound, अच्छा, ऑटोमेटिकली हैपनिंग। आप वो करने के बाद एक्सेल करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ ऑलरेडी द एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम योर बॉडी। तो साउंड से एक्सेलेशन ऑटोमेटिकली हो गया है, तो इसलिए सेकंड टाइम करने के बाद अगेन यू हैव टू इनहेल। तो ये होल्ड करना है क्या ब्रेथ को? नहीं, यू डोंट हैव टू होल्ड इट। ओके, while making sound you have to inhale then exhale out. Just breathe in, make the sound, automatically exhalation happens. Any other doubt? Anji? Ma'am, while doing Anulom Vilom, Yeah. we have to do that alternately, na? Like take the breath, inhale from left, then exhale from right, then inhale from right, then exhale from left. Correct. Thank Like you, ma'am. inverted you start from left to right, right to left, left to right, right to left. That's correct. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so can we just end the session? If you have any doubts, please jot it down. I'll surely clear whatever doubts you have in the next week. Okay? Yes, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Bhabhi. Thank you, Bhabhi. Thank you.